Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, I'm Saidi and this is our series Learn Korean with me. Just a small reminder, I am also a beginner. So this is not a class where one expert is teaching. This is तुम और हम दोनों साथ में कोरियन सीखेंगे। आज का टॉपिक है कोरियन लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज हंगुल। सो अगर आपने कभी सोचा है यार कोरियन बहुत टफ है तो ट्रस्ट मी आज के बाद आपका ये ओपिनियन चेंज हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट जस्ट अ क्विक हेड्स अप, माय वॉइस साउंड्स अ लिटिल ऑफ टुडे बिकॉज आई एम रिकवरिंग फ्रॉम cold and cough, but I didn't wanted to miss to shoot this video, so thanks for bearing with me. So what we will learn today? First we will learn what is the Korean language, then what is Hangul, and then why Korean is easier than you think and how we are going to learn in this series. So सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ कोरिया। जो लैंग्वेज के ड्रामाज, के पॉप, कोरियन शोज, इंटरव्यूज सब में यूज होती है, दैट इज कोरियन। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कोरियन लैंग्वेज का अपना राइटिंग सिस्टम है जिसका नाम है हंगुल। जिसका नाम है हंगुल, रिपीट आफ्टर मी, जिसका नाम है हंगुल। जस्ट लाइक इंग्लिश यूजेस ए बी सी डी, Hindi and Marathi uses k, k, g, g. Similarly, Korean uses Hangul letters. So when you see Korean text जो थोड़ा बॉक्स या ब्लॉक्स जैसे दिखते हैं, that is Hangul. So you will think what is Hangul? Hangul which is equal to Korean alphabet system. Hangul कोई random symbols नहीं है. It is a scientifically designed alphabets. इसका मतलब हर एक लेटर का एक क्लियर साउंड होता है और जो लिखा होता है वही बोला जाता है। इंग्लिश में क्या होता है? वी राइट THOUGH बट वी प्रोनाउंस इट लाइक दो। वी प्रोनाउंस इट लाइक दो, THO, बट वी राइट इट THOUGH। कंफ्यूजिंग राइट? बट इन कोरियन जो लिखा है वही बोला जाता है। नो साइलेंट लेटर्स, नो गेसिंग में। इसलिए लोग कहते हैं कोरियन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू रीड। So before learning about the Hangul, we'll go back into the history to understand how Hangul was created. So Hangul was created by King Sejong the Great in the 15th of century. उनका एक ही एम था, कॉमन पीपल को पढ़ना लिखना इजी होना चाहिए। अर्लियर लोग चाइनीज कैरेक्टर्स यूज करते थे जो बहुत डिफिकल्ट थे और कॉमनर्स को पढ़ना और लिखना समझ नहीं आता था। सो किंग सेजॉन थॉट व्हाई नॉट क्रिएट अ सिंपल अल्फाबेट जो हर कोई सीख सके, एंड दैट्स हाउ हंगुल वाज बोर्न। सो बेसिकली हंगुल वाज डिजाइन्ड फॉर बिगिनर्स जस्ट लाइक अस, which is great news for us, right? Now we will learn a very important concept which is how Hangul works. Hangul letters को हम vowels और consonants में divide करते हैं. Just like in English, vowels A, E, I, O, U, consonants B, C, D, F, etc. Also in Hindi and Marathi we use swar and vyanjan. Swars are O, R, E, E and vyanjans are K, K, G. In Korean, vowels are called as mo, mo, and consonants ja, ja, Repeat after me. Vowels are mo, and consonants are ja, mo, and ja, बट ये यहाँ एक ट्विस्ट है, कोरियन लेटर स्ट्रेट लाइन में लिखे नहीं जाते, दे आर रिटन इन ब्लॉक्स लाइक स्मॉल स्क्वायर्स। ब्लॉक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हंगुल। इन इंग्लिश वी राइट CAT, cat, straight in a line,
but in Korean we write letters in a combined block like a mini block. So instead of writing letters one after another like CAT, in Korean makes one syllables which is equal to one block. Suppose CAT cat we write in a straight line in English, and if we want to write in a Korean, it is write in a single block. सिंगल ब्लॉक. डोंट वरी, अभी बस कंसेप्ट समझो. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, कोरियन लेटर्स जॉइंस टू फॉर्म ब्लॉक. वन ब्लॉक विच इज इक्वल टू वन साउंड, ऑल्सो वन syllable. One sound or one syllable makes a one block. So, why Korean is easier than you think? Let me tell you why Korean is actually beginner friendly. First, no confusing pronunciation. जो लिखा है वही बोला जाता है. Second, limited alphabets. Hangul has a small set of vowels and consonants. You don't need to memorize hundreds of characters. Third, logical design. Sounds are based on mouth shape and pronunciation. Fourth, perfect for step by step learning. अगर आप अल्फ़ाबेट सीख गए, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम डे वन. इसलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम वॉवल्स, कंसोनेंट्स एंड ब्लॉक्स सीखेंगे, यू विल बी एबल टू रीड कोरियन वर्ड्स योर सेल्फ. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आगे की सब वीडियोज़ नेक्स्ट बैक टू बैक आपका देखना और सीखना. Then only you will able to learn vowels, consonants about Hangul and the block system. Now, how this series will teach you? इस सीरीज में हम एक एक कंसेप्ट स्लोली कवर करेंगे. इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स में एक्सप्लेन करूँगी. स्लाइड्स के थ्रू अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंसेस देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे, विच इज़ रिपीट आफ्टर मी, जस्ट लाइक टुडे वी डिड अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. तो वॉवल्स में को कोरियन में क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज मोंग. एंड कॉन्सोनेंट को यस, इट इज कॉल्ड एज जोम. सो लाइक दिस वी विल डू रिपीट आफ्टर मी. ऑल्सो यू कैन पॉज द वीडियो, रिवाइंड इट और अपने स्पीड से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. नो प्रेशर, नो कंपैरिजन, बस कंसिस्टेंट लर्निंग. और कॉमन फियर होता है कि कोरियन बहुत टफ है. अगर आपके दिमाग में भी यही थॉट आ रहा है, यार कोरियन मुझसे नहीं होगा, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्ट. लैंग्वेज टफ नहीं होती, अप्रोच टफ होता है. अगर सिंपल से स्टार्ट करो, साउंड समझ के सीखो और थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो, देन कोरियन इज एक्चुअली फन. और हाँ, सिंस आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ यू, अगर मुझे कन्फ्यूजन होगा, आई विल शेयर विथ यू इन द वीडियो. और अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. वी विल क्लियर इट टुगेदर. In the next video, we will start the real learning, which is Hangul vowels, which are mo, कोरियन के बेसिक वॉवल साउंड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी और इंग्लिश से कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और छोटे छोटे वर्ड्स. और उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट्स, फिर ब्लॉक्स, फिर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो. अगर आप सीरियसली कोरियन सीखना चाहते हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज केसोल वाइब्स, and comment below I am learning with you, so that I can understand you are there to learn Korean with me. And don't forget to press the notification bell icon, ताकि आपको जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले. टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय. अन्योंग.